We are not going to discuss all the details and aspects of vectors which can be used in mammalian cell lines because they are very similar to what we discussed in eukaryotic vectors. There are hundreds of mammalian expression vectors and they share certain features. So we are only going to discuss those features. So let's look those features in detail so that you have an overview that what aspects and what ingredients are essential to design a mammalian expression vector. A representative mammalian expression vector contains eukaryotic origin of replication, ताकि क्योंकि mammalian cells are eukaryotic ताकि वो आराम से उसमें grow कर सकें, and which usually comes from an animal virus, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था SV40. The promoter sequences that drive expression of the clone genes, आपको promoter sequences चाहिए, selectable marker चाहिए, and transcription termination sequences चाहिए. Ultimately, like those are polyadenylation signals. They all must be eukaryotic and are frequently taken from either human viruses, जिसमें cytomegalovirus है, SV40 है, या herpes simplex virus है, या आप वो यही sequences mammalian genes से भी ले सकते हैं जो usually use होते हैं. उनमें actin है, metallothionein है, thymidine kinase है और bovine growth hormone है. You can use strong constitutive promoters and efficient polyadenylation signals are preferred. Strong constitutive promoters का ये होता है कि they are continuously producing mRNA. Ultimately आपका पैदा होता रहेगा क्योंकि gene express होगा लगातार. लेकिन जब but for your own protein, heterologous protein production के लिए you need inducible promoters, especially when you have a heterologous protein which is toxic to the host cell. Another thing which is different from other vectors which are used in lower cell kinds, expression of a gene of interest is increased by placing an intron between promoter and the multiple cloning site within the transcribed region. जब हम बैक्टीरिया से काम कर रहे थे वहां हम इंट्रॉन प्लेस नहीं करते थे, लेकिन यहाँ क्योंकि हम लोग mRNA स्प्लाइसिंग का फायदा उठा सकते हैं तो वी प्लेस एन इंट्रॉन. इसी तरीके से the sequences that are required for selection and propagation of a mammalian expression vector in E. coli are derived from a standard E. coli cloning vector such as PBR322. अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अब हम इतने हायर लेवल पर आ गए हैं, बट वाई स्टिल वी हैव एन E. coli origin of replication. उसकी रीजन ये है कि हम जितना ज्यादा अपने वेक्टर्स को एडिट कर सकें एक ईजियर सिस्टम में, हम उसको रिटेन करते हैं और हम एडवांटेज उठाते हैं कि हम इन वेक्टर्स को एडिट कर सकें बैक्टीरिया में. सो दैट्स हाउ अ जनरलाइज्ड मैमेलियन वेक्टर लुक्स लाइक. आपके पास इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, आपके पास इसमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, आपके पास इसमें प्रोमोटर है, आपके पास इसमें टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सीक्वेंस है, आपके पास इसमें पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंस है, आपके पास इसमें यूकैरियोटिक ओरिजिन है, आपके पास इसमें इकोलाई के लिए ओरिजिन है और आपके पास इसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन है. और हम जो इंट्रॉन की बात कर रहे थे मल्टीपल क्लोनिंग साइट की, सो दिस इज दैट इंट्रॉन और ये मेजर प्रोमोटर है जो इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट के लिए है. सो दीज आर द जनरलाइज्ड थिंग्स विच यू डू रिक्वायर टू अल्टीमेटली मेक अ मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर. After this, in addition to it, what would you need for the best results? That it must be equipped with the translational control sequence. Initiation of translation in higher eukaryotic organisms depends on a specific sequence of nucleotides surrounding the start codon. आपको पता है कि start codon हमारे पास मिथायोनीन है, लेकिन उससे पहले उसके जो सराउंडिंग सीक्वेंस है वो भी आपको चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, कोजैक सीक्वेंस, which is given here. लास्ट में या तो ए होता है या जी होता है, ठीक है ना. द कॉरेस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंस फॉर द कोजैक सीक्वेंस विच इज ऑफ्टन फॉलोड बाय अ सिग्नल सीक्वेंस टू फैसिलिटेट सिक्रीशन, अ प्रोटीन सीक्वेंस टैग टू एनहेंस द प्योरिफिकेशन ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन. एंड अल्टीमेटली ये जो टैग है ये आप प्रोटियोलिटिकली क्लीव कर देते हैं सो दैट वो आपके हेटेरोलोगस प्रोटीन का हिस्सा ना हो. वट यू कैन सी हियर इज कि आपके पास एक अनट्रांसलेटेड रीजन है, आपके पास ये सेकंड अनट्रांसलेटेड रीजन है, एक 5 प्राइम पे एक 3 प्राइम में.
और फिर यू हैव अ कोजेक सीक्वेंस, देन यू हैव अ सिग्नल सीक्वेंस, देन यू हैव अ प्रोटीन एफिनिटी टैग. हमने प्रोटीन एफिनिटी टैग बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग प्रोकैरियोट्स. सो आई एम रेफरिंग, इफ यू हैवंट हर्ड दैट लेक्चर और टॉपिक, गो बैक टू दैट टॉपिक जिसमें हमने एफिनिटी टैग्स डिस्कस किए थे, बिकॉज दीज एफिनिटी टैग्स आर सेम एज जो हम यूकैरियोट्स में यूज करते हैं. और आपके पास एक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज साइड है. अब ये प्रोटियोलिटिक क्लीवेज साइड आपको यहां पर क्यों चाहिए? ताकि टैग जौन सा है वो आपकी प्रोटीन के जब हम फंक्शन स्टडी कर रहे हो उसमें अफेक्ट ना करे. देन यू हैव अ जीन ऑफ इंटरेस्ट और ऑब्वियसली यू हैव अ स्टॉप कोडॉन. फाइनली जब आप कंस्ट्रक्ट पॉलिश कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली एज वी जस्ट डिस्कस इट हैज अ स्टॉप कोडॉन. आपको ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन थे जो 5 प्राइम पे थे, 3 प्राइम पे भी थे, आपको क्यों चाहिए थे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन एंड mRNA स्टेबिलिटी. अगर ये ना हो तो हम उस तरह की mRNA स्टेबिलिटी नहीं देखते. So therefore what we do is that we take these untranslated regions from human globin gene and ultimately we use it in mammalian expression vectors. Finally, what you need to do is to check your strain for codon bias as well. That we have already discussed in the eukaryotic expression systems as well and also in prokaryotes कि codon bias कैसे affect करता है. And when you check for that codon bias, then ultimately you can make a construct जो ultimately आपको सबसे अच्छी stable और functional protein दे.